কি বন্ধু তোমরা খুশি তো? আমি তো খুশি, আর খুশি খুশি মন নিয়ে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আবারও চলে এসেছি। আমি এখন আছি রুক্মিণী টেম্পলে। রুক্মিণী হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। তো আজকে তোমার এই রুক্মিণী টেম্পলের ইতিহাস তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, যে কেন রুক্মিণী টেম্পল এতটা দূরে বানানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির থেকে কেন এতটা দূরে বানানো হয়েছে। তো চলো। হাই। ভগবান চাঁদ ঘোড়ার রথে করে রুক্মিণী দেবীকে আনতে অমরাবতী মহারাষ্ট্র গিয়ে রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেন। হরণ করার পর দুজনে দ্বারকাতে আসেন। দ্বারকাতে দুজনের বিবাহ হয় চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে একাদশীর দিন। বিবাহ হওয়ার পর দুজনে দুর্বাসা ঋষির আশ্রমে যান। দুর্বাসা ঋষির আশ্রম দ্বারকা থেকে 50 কিলোমিটার দূরে পিন্ডারা নামক গ্রামে। গিয়ে বলেন, গুরু মহারাজ, আমাদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আপনাকে আমাদের প্রাসাদে ভোজন করুন। ঋষি বলেন, আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ, আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব না। ঘোড়ার জায়গায় লক্ষ্মী ও নারায়ণ আপনারা দুজন যদি রথ টেনে নিয়ে যান, তাহলে আমি ভোজন করতে যেতে প্রস্তুত। ঋষি দুর্বাসার কথা মতো রথের একদিকে জগতের পালনকর্তা শ্রীকৃষ্ণ আর অন্যদিকে জগতের মাতা রুক্মিণী দেবী দুজনে নিজের হাতে করে রথ টানতে লাগলেন। অর্ধেক রাস্তা আসার পর মাতা রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, ভগবান, আমার জল পিপাসা পেয়েছে, জল পান করিয়ে দিন আমাকে। শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে নিজের ডান পায়ের আঙুল মাটিতে চেপে মাটি থেকে মা গঙ্গার আবির্ভাব ঘটিয়ে জল পান করান রুক্মিণী দেবীকে। তৃষ্ণা মেটাতে ব্যস্ত দেবী অতিথি দুর্বাসা ঋষিকে জলপান করার কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলেন। এই ব্যবহারে ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, শ্রীকৃষ্ণর থেকে রুক্মিণীকে আলাদাই থাকতে হবে। সেই অভিশাপ আজও মাথায় করে নিয়ে দ্বারকা নগরীর বাইরেই রয়েছে দেবী রুক্মিণী দেবীর মন্দির। আরও বলেন যে আপনার সোনার নগরী দ্বারকাতে সব কিছু পাওয়া যাবে, কিন্তু পান করার জন্য মিষ্টি জল পাওয়া যাবে না। তাই আজ পর্যন্ত দ্বারকা নগরীতে মিষ্টি জল পাওয়া যায় না। আরও কথিত রয়েছে যে অর্ধেক দর্শন দ্বারকাধীশকে আর অর্ধেক দর্শন দেবী রুক্মিণী দেবীকে করলে তবে দ্বারকাধীশ দর্শন সম্পূর্ণ হয়। बोलो रुक्मणी माता की एक मिनट का जानकारी बिल्कुल शांति से सुन लेना, आपस में बातें नहीं करना। एक ही मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं। भगवान चार घोड़े के रथ में रुक्मणी माँ को लेने के लिए अमरावती महाराष्ट्र गए। वहाँ से रुक्मणी माँ का हरण किया। हरण करने के बाद दोनों द्वारिका में आए। द्वारिका में दोनों का विवाह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, अगले महीने में माता जी की शादी विवाह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों का द्वारिका में विवाह हो जाने के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पिंडारा, पिंडतारा क्षेत्र। वहाँ भोजन का निमंत्रण दिया कि गुरु महाराज, हमारा विवाह हो गया है, तो आपको हमारे महल में द्वारिका में भोजन करने के लिए चलना है। तो गुरु महाराज बोले, मैं भोजन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हम ऋषि पुत्र हैं, हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, हम घोड़े पर सवारी नहीं करें। आप पहले ये घोड़े को निकाल दो। ये मूंगे जीव को कष्ट लगता है, वो हमारी भक्ति में बाधा आती है। वो बोल तो नहीं सकते, मगर कष्ट तो उनको ही होता है। उसी समय भगवान ने रथ में से घोड़े को निकाल दिया। घोड़े की जगह आप दोनों जुट जाओ, लक्ष्मी और नारायण, तो मैं भोजन करने के लिए तैयार। उसी समय दोनों ने हाँ बोल दिया। भगवान ब्राह्मण बे जना लागी गया। एक बाजू भगवान ने, बीजी बाजू माता जी। एक साइड में जगत का पालनहार भगवान कृष्ण और दूसरी साइड में जगत की माता रुक्मिणी। दोनों ने अपने हाथों से रथ को खींचा। आधा मार्ग तय हो गए। मध्याह्न का काल हुआ, दोपहर के 12 बज गए। सूर्य नारायण तापमान में आ गए। वो तो राजा की कुंवरी, जिंदगी में कष्ट किया वो तो सुनाई। 5 भाई की इकलौती बहन, अचानक दुख आ गए। भगवान, मेरा गला सूखता है, आप मुझे पानी पिला दो, अब मेरे से रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान ने तुरंत रथ को रोक दिया। भगवान ने भी पत्नी का मान रखा था, हमको तो रखना ही पड़ेगा। भगवान ने अपनी योग विद्या से अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से
माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। बोलिए गंगे मैया की जय। भगवान ने पानी पिया, माता जी ने पानी पिया, दोनों ने पानी पिया, दोनों की प्यास तो बुझ गई, मगर अफसोस एक बात की भूल, पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में, दुर्वासा ऋषि, उनकी आज्ञा लेना भूल गए, भूल ही गया। उतावड़े आंबा न पाता, पानी पी लीધું, તરસ લાગી ગઈ, 12 વર્ષ ભોગવવાનો વારો આવી ગયો। સીતાજીને શ્રાપ પડ્યો તો 14 વર્ષ જંગલમાં વહી ગયા, એને ખબર નથી। એને તો એમ જ ને કે ભગવાન આગળ વિવાહ થયા એટલે એના ઘરે લીલા લહેરાઈ ગયું। આ તો બધી નસીબની વાતો છે। ભગવાન જો રામ ભોગવતો હોય વનવાસ, તો આપણે તો ભોગવવાનો વારો આવે કે આઈ ભોગવીને જવાનું, ક્યાંય નહીં। આઈનું ગયું આયા જ છે। 14 વર્ષથી ઉગાડા પગે અહીંયા ગયા હતા, आईनो कई रुआए। आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर यहाँ जंगल में, તમારો બેય માણસનો 12 વર્ષનો વિયોગ થઈ જશે। એટલા માટે ભગવાનનું મંદિર ગામમાં, માતાજીનું મંદિર આ જંગલમાં। બીજો શ્રાપ એ દીધો। दूसरा श्राप ये दिया, आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा मगर पीने का मीठा पानी। इस श्राप की वजह से आज की तारीख में भी एक बूंद भी मीठा पानी मिलता नहीं है। यहाँ आने वाले यात्री को 2 कार्य करते हैं। मुख्य कार्य प्रेम से शांति से माँ का दर्शन करना, ये आधी यात्रा की मालकिन है। आधी यात्रा द्वारकाधीश के दर्शन से, परिपूर्ण यात्रा रुक्मणी माँ के दर्शन से। दर्शन करने के बाद नीचे पानी पीना जरूरी है, मेन प्रसाद पानी का है। फिर एक परिक्रमा करके आगे जाने का है। दूसरा कार्य पानी का दान, आपके लिए नहीं, आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में जो भी गुजर गया, कोई द्वारका भूमि में आया, कोई नहीं आया, किसी की इच्छा नहीं थी, उनके पीछे पानी का दान होता है। यहाँ तो पानी मिलता नहीं है। ये पानी बाहर से 20 किलोमीटर दूर से ट्रक और टैंकर के माध्यम से पानी आता है। उनका 4 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा गौ माता के लिए, दूसरा हिस्सा पशु और पंछी के लिए, तीसरा हिस्सा आने वाले यात्रिकों के लिए, और चौथा आखिरी हिस्सा माता जी की सेवा पूजा में ये पानी का यूज होता है। किसी यात्री भक्त की इच्छा है कि एक दिन पानी के प्याऊ में पूर्वजों के पीछे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक दिन प्याऊ में सेवा देना है, तो एक दिन का 2000 रुपए लगता है। वो शक्ति नहीं है। कोई आधे दिन पानी का दान करे, उनका 1000 रुपए लगता है। 50 घड़े का 500 रुपए। कोई एक समान नहीं आते, कोई राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है। कोई आखिरी का 11 घड़ा पानी का दान करे, उनका 200 रुपए लगता है। आपकी इच्छा है तो अंदर काउंटर के ऊपर आपका नाम पुकारा जाएगा, वहां से प्रसाद और कुमकुम आपको मंदिर की ओर से आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। मन में ऐसा नहीं रखना कि पंडित जी ने सुनाया तो दान करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं। गुजराती विचारे नहीं हो गोरे समझाયું હવે આ જોટી લેશે એવું નથી હો। એક વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 3 વાર નહીં, 100 વાર મન માને કે આપણે આ પવિત્ર ભૂમિ છે, દ્વારકા નગરી છે, આપણે આપણા પૂર્વજોની પાછળ પુણ્યનું ભાથું બાંધવું છે તો દેવાનું, નકર પ્રેમથી હાથ જોડો। कोई बात फर्जित नहीं है। मोबाइल कैमरा बंद रखना, दर्शन करना, पानी पीना। और एक महत्व की बात वो है कि रुक्मणी माँ का पत्र किसी को चाहिए, शाम को 7 बजे के बाद पढ़ो। जो भी टेंशन होता है, किसी की शादी नहीं होती, मंगनी नहीं होती, नौकरी चाकरी का, विदेश जाने का टेंशन, वीजा का टेंशन, शरीर साथ नहीं देता, जो कुछ टेंशन होता है सब पढ़ने से दूर हो जाता है। मगर विश्वास चाहिए। रोज शाम को द्वारकाधीश को सुनाई जाता है। बोलो रुक्मणी माता की जय। फूल माला किसी को चाहिए तो ले लो। এই মন্দিরে দর্শন করার নিয়ম হচ্ছে, একদল দর্শনার্থী হলে তাদেরকে এই মন্দিরের ঘটনা শোনানো হয়, তারপর দর্শন করানো হয়, তারপর প্রসাদ হিসেবে জলপান করানো হয়। আর আপনারা 1500 টাকার বিনিময়ে আপনাদের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে জলদান করতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিওটা কেমন হলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নেক্সট পার্টের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।